Hi students, good morning, and let's continue and end today finally the chapter of carbon and its compounds. I know this chapter must have taken a long time, but guys, this is truly an important chapter. Why? Because it comes in class 11th also, and that's the reason why. Now, let us start with the chapter and let's complete it. So today there are going to be some hardcore reactions. So you just need to understand few of the terms. As in, what do you mean by ester? Also, what do you mean by the word ether? Now let's understand. Hydrolysis of esters. Now what do you mean by hydrolysis? Hydrolysis means addition of water. ओके जब भी आप कभी पानी किसी भी चीज में डाल देते हो दैट इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस. सो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स. सो यदि मैंने कोई भी एक एस्टर लिया, आपको यदि मालूम होगा एस्टर के फॉर्मूले में आता क्या है, CH3 या RCOOR. ओके सो दो तरह के ओज आते हैं उसके अंदर, वो कुछ इस तरह का रहेगा R and this R can be any of the alkyl group whichever you can feel like. So ester plus यदि आपने उसमें water डाला in the presence of dilute hydrochloric acid. Guys, one more thing, remember hydrochloric acid HCl does not form ionic bond, it forms covalent bond, sharing होती है उसमें. So dilute HCl and heat. If I am going to do that, so ester and hydrolysis को यदि मैंने किया तो क्या बन जाएगा, carboxylic acid. So CH3COO and then again CH3 say in the presence of H2O or with H2O will give you what? Carboxylic acid. What is carboxylic acid? CH3COOH plus एक अल्कोहल बन जाएगा आपके पास में. ओके सो जस्ट रिमेंबर, जब भी कभी आप एस्टर्स को हाइड्रोलाइसिस करते हो देन आपके पास में एक बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और एक बन जाएगा अल्कोहल. एस्टर्स आर ऑल्सो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था. नाउ जब भी यदि आपने इस चैप्टर का जब टेस्ट होगा, जैसे मैंने आज टुडे इज 23rd of July 2020, टुडे आई हैव गिवन यू वन शीट of around 50 questions. Tomorrow once again I am going to give you another assignment of around 50 questions, and for this continuously week every single day you will be getting around 50 questions. And believe me guys, if you are able to finish all those questions within this week, that is around 350 to 400 questions, then carbon and its compounds में आपके marks कोई नहीं काट सकता, that will be for sure. Now ester को यदि मैंने एक basic hydroxide, what is a basic hydroxide? NaOH, which is known as sodium hydroxide, and sodium hydroxide का common name क्या होता है, caustic soda. So ester plus NaOH in the presence of heat will be giving you what? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड याद करो अपन ने क्या बनाया था, सोडियम इथेनोएट, CH3COONA, सोडियम इथेनोएट. तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एक और अल्कोहल आपका निकल के आ जाएगा बाहर. सो इन दोनों रिएक्शन में विच इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स, यदि आपने एस्टर में वाटर ऐड किया देन कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल. यदि आपने एस्टर में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया देन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि आपने Na ऐड किया था, एंड एन अल्कोहल अगेन. यदि मैंने सपोज कर लो जैसे ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH which is known as ethanoic acid. 5 to 8% solution of ethanoic acid is also known as vinegar. So vinegar plus NaOH, sodium hydroxide, is going to give you what? Sodium ethanoate, CH3COONA, sodium ethanoate plus water molecule बाहर. Once again, यदि मैंने 2 moles of again मैंने acetic acid लिया और उसको यदि मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करवाया तो क्या बन जाएगा मेरे पास में, that will be 2 moles of CH3COONA. Now please understand guys that Na2CO3 is technically known as what? That is known as washing soda, while NaHCO3 is known as baking soda. Okay. Now, so यहाँ पर भी आपके पास में बन गया क्या, सोडियम इथेनोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. And which is the surest test to check that carbon dioxide is evolved outside? Very simple. Put this particular gas
in pure lime water, and if lime water turns milky, then this will be known as, correct? आगे बढ़ते हैं. CH3COOH plus NaHCO3. What is NaHCO3? Sodium hydrogen carbonate, which is known as baking soda, will give you CH3COONA plus CO2 plus H2O. So all this will be done. Next पर आते हैं. Now comes the most important part. Guys ध्यान रखना, इन रिएक्शन में से एक रिएक्शन confirmed एग्जाम में आती है. It's a sure question. Means kind of. Now comes to the last topic or the second last topic. What do you mean by the word soaps? Now ये भी काफी एक myth breaking topic है, because बहुत सारी चीजें आपको ऐसे समझ में आएंगी कि क्या टीवी में दिखाते हैं वो सही है या नहीं है. And I don't know वो सही है कि नहीं है. That is for you to comment. Sodium और potassium salts of carboxylic acids. Soaps की definition क्या होगी? What are soaps? Soaps are the substances which has sodium or potassium salts of carboxylic acids. इसका मतलब CH3COONA होगा उसके अंदर, या CH3COOK होगा उसमें, potassium ethanoate or sodium ethanoate, something like this. Now, soaps की working कैसे होती है? How does a soap work? तो you already know, आमतौर पे टीवी में आपको दिखाते हैं that soap से आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो जाएगी, and soap आपकी स्किन को सपल करेगा, and रोज जैसी खुशबू आएगी, and so on and so forth. That's absolutely wrong, guys. First of all, please understand, soaps का केवल एक ही काम होता है. That is to do what? And that is to remove dirt and dust and smudges. Now let's understand the working of soap. Now suppose कर लो there is this particular molecule, and this is a soap atom. Okay. Now soap के अंदर दो ends होते हैं. ये होता है आपका tail और ये होगा आपका head. Okay. So जो tail होगा वो हमेशा ध्यान रखना, that would be what? That would be hydrophobic, while the head would be what? Hydrophilic. सर इसका मतलब क्या है हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक? हाइड्रो टेक्निकली मीन्स पानी, हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग, हाइड्रोफिलिक water loving. Now see this, there are two ends and both the ends have got different properties. Ionic end will be the hydrophilic end and the hydrocarbon tail will be the hydrophobic. This is the hydrocarbon chain और hydrocarbon tail which is what? Hydrophobic. Because वैसे भी आप देखोगे तो जितने भी organic compounds होते हैं उनमें से कोई भी organic compound normally पानी के अंदर dissolve नहीं होता है. I'm not saying, अब ऐसे आप बोलोगे ethanol, of course it dissolves in water, but I'm saying majority of them are non-polar in nature, they don't dissolve well in water. Now, so hydrocarbon जो tail होगा, this will be what? This will be hydrophobic and the head would be what? Hydrophilic. Hydro means water, phil means love. So hydrophilic means water loving. इसका मतलब यदि ये एक मॉलिक्यूल है सोप का और यदि ये पानी के अंदर जाएगा तो ये जो इसका हेड होगा ये क्या होगा? पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा. भाई ये वाला जो टेल होगा ये बोलेगा मैं नहीं, मेरे को नहीं होना डिसॉल्व. राइट. हमेशा ध्यान रखना दो तरह की चीजें होती हैं, दो तरह के सब्सटेंस होते हैं. वन इज नोन एज पोलर व्हाइल अनदर इज नोन एज नॉन पोलर. व्हाट डू यू मीन बाय पोलर एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन पोलर? पोलर सब्सटेंसेस आर दोज व्हिच कैन बी ब्रोकन अप into two or more than two sections. Non-polar substances are those which cannot be broken up into positive and negative. For example, HCl, it's a polar covalent bond. H positive, Cl negative. On the other hand, CO2, carbon dioxide, it is non-polar. Now see this. जब भी कभी ये सोप का मॉलिक्यूल, क्योंकि करोड़ों सोप के मॉलिक्यूल्स होंगे, आपने पानी के अंदर आपने सोप डाला या आपने सोप से उसको ब्रश ऑफ किया, सोप का जो मॉलिक्यूल होगा ना, दिस पर्टिकुलर पार्ट वुड बी व्हाट? हाइड्रोफिलिक. तो ये तो जाएगा पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो टेल है ये क्या करेगा?
ये जितना भी जो डर्ट या स्मज या जो भी ऑयली सब्सटेंस है ये उनके अंदर जाकर के डिसॉल्व होगा। क्यों? बिकॉज ही हेट्स वाटर। सो ये कहीं पर भी जाकर डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। अब जब ये पानी में डिसॉल्व नहीं होगा तो इसका मतलब है जितनी भी जो गंदगी होती है जो आपके शर्ट्स पे, ट्राउजर्स पे, स्कर्ट्स पे कहीं पर भी लग जाते हैं, ये उस गंदगी के अंदर जाकर के या उस डर्ट या स्मज के अंदर जाकर के डिसॉल्व हो जाएगा। Now once this particular hydrophobic tail is going to get dissolved in that smudge, what is going to happen? ये हाइड्रोफोबिक था मतलब वाटर हेटिंग, बट ये जो ऑयल एंड डस्ट लविंग होता है तो ये उसमें चला जाएगा। अब जब ये उसमें जाएगा तो क्या करेगा? उसको डाइल्यूट कर देगा, मतलब उसके स्ट्रेंथ को डाइल्यूट कर देगा। तो जो भी वो जो डर्ट या स्मज होता है वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा। उसके बाद में आपने देखा होगा जब भी कभी आप स्मज करते हो या जब भी कभी आप एजिटेट करते हो वाटर को, एजिटेशन मीन्स व्हाट? आप रबिंग एक्शन करते हो आइदर इन वॉशिंग मशीन और एनीवेयर एल्स। जब भी आपने रब किया, अब क्योंकि ये जो स्पॉट है ये ऑलरेडी क्या हो गया है, काफी वीक हो गया है, बिकॉज जितने भी जो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है वो उसमें डिसॉल्व हो गए। जैसे ही रब करोगे वो सारी की सारी डर्ट बाहर आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? आज के बाद में आप जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स देखोगे फॉर सोप, एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। कई उसमें दिखाते हैं कि वो उसको पंच मार रहा है डस्ट को एंड डर्ट को एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय दैट पंच। सो जो हाइड्रोफोबिक एंड है दैट इज सिंपली गोइंग टू गेट डिसॉल्व्ड इन द oil or the smudge section, while the head wala part, which is the ionic part, will always get dissolved in water. अब जितने बार भी आपने रब करा उतने बार में ये कंटिन्यूसली टग ऑफ वॉर की वजह से क्या होगा? The dirt will get loosen up because वो तो पहले ही loosen up हो चुका है, and that's how the soaps clean. But then comes sir, ये मार्केट में तो सोप्स अलग अलग टाइप के आते हैं। To be very honest guys, even if you do not use soaps, there is no harm. The only issue is because अब आप आजकल मार्केट में जाते हो, मार्केट में जब आप जाते हो या आप जब कभी स्कूल जा रहे हो तो आपने देखा होगा n नंबर ऑफ धूल, मिट्टी, ऑयल एंड डस्ट फ्रॉम व्हीकल्स, एग्जॉस्ट गैसेस एंड ऑटोमोबाइल्स एंड एफ्लुएंस, ये सारे के सारी चीजें वेपराइज होकर के आपके स्किन के ऊपर में बैठ जाते हैं। यदि आपने नॉर्मल वाटर भी डाला और आपने इसको क्लीन किया तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ वाटर इज गोइंग टू गेट वेस्ट। उससे बचने के लिए व्हाट डू यू यूज? यू यूज सोप। सो सोप इज अल्टीमेटली गोइंग टू व्हाट? सोप इसके साथ में जाएगा, डर्ट के साथ में जाकर के वो उसको डाइल्यूट कर देगा जब भी आपने ऐसे रब कर दिया एंड क्लीन। इसीलिए दैट्स द रीजन व्हाई यू सी दैट जब भी कभी आप सोप यूज करते हो आप खुद की बॉडी को पहले अच्छे ढंग से रब कर रहे होते हो। केवल आपने ऐसे करके सोप लगाया तो बॉडी क्लीन नहीं होगी, यू नीड टू एजिटेट। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो हाइड्रोफोबिक एंड्स इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर, हाइड्रोफिलिक एंड्स आर ऑन द surface of the cluster. I have already told you there is this spherical formation which is known as Michel, very important term. Now let us say suppose ये मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है, अब मैंने एक और मॉलिक्यूल बना दिया समथिंग लाइक दिस। लाइक दिस। अब इनको जहां पर भी डर्ट मिलता है ये एक साथ सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? उस जगह पर जाकर के उनका जो टेल होगा उस डर्ट के अंदर एंटर करना चालू हो जाएगा। कैन यू सी इट? एंड नाउ दिस काइंड ऑफ सो कॉल्ड सर्कुलर फॉर्मेशन विल स्टार्ट बिकमिंग। और ये कहीं बीच में कोई डर्ट का स्मज होगा, सी ये कोई एक स्पॉट है, और ये सारे के सारे उस पर अटैक करना चालू कर देंगे, उसको डाइल्यूट कर देंगे, वीक कर देंगे, और जब भी आप रब करोगे ये डस्ट बाहर निकल आएगा। दिस काइंड ऑफ सर्कुलर फॉर्मेशन of the soap molecules around any dirt, smudge or the stain is known as what? Michel, M-I-C-E-L-L-E or micelle. Now this micelle
क्या करेगा, ये चारों तरफ से ऐसे क्लस्टर फॉर्म करेगा, एंड दैट्स व्हाट इज रिटन ओवर देयर, द स्फेरिकल फॉर्मेशन विल बी नोन एज व्हाट, मिसल। सो आप क्या लिखोगे, डिफाइन द वर्ड मिसल। Whenever the soap molecules forms a cluster around any kind of oil or smudge or stain, then such kind of cluster so formed will be known as mishel or missel. Now होता क्या है, जब ये जितना भी ये जो सोप होते हैं, ये सोप अंदर जब जाते हैं तो ये उसके साथ में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म करते हैं, और ये जो डर्ट होता है, ये डर्ट अब ऊपर की तरफ में अलग से घूमता नहीं है, ये सोप और डर्ट मिला करके एक इमल्शन बना देते हैं, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ इमल्शन। तो ये जो डर्ट एंड डस्ट होता है, ये पानी के अंदर ही रहेगा, बट ये अगले वाले कपड़ों में जाकर के चिपकेगा नहीं, बिकॉज नाउ दिस इज नोन एज इमल्शन, अब वो इमल्शन बन चुका है। एजिटेशन ऑफ वाटर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड सोप्स एंड द वर्ड डिटर्जेंट्स? आपने देखा होगा ये बहुत सारे अपने यहाँ पर इंडिया में डिटर्जेंट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल सर्फ एक्सेल और द एरियल और द टाइड, और देयर आर अदर वंस आल्सो लाइक निरमा एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. Over here we are discussing about what is the difference between the word soaps and detergents, and whether soaps are good or detergents are better. Let's see. Detergents can be defined as the ammonium sulfate or sulfonate salts of long chain of hydrocarbons. Detergents are normally synthetic compounds. Synthetic मतलब ये man made होते हैं, इसीलिए detergents non-biodegradable होते हैं. The only disadvantage. So detergents are synthetically made. They are compounds of ammonium sulfate or sulfonate salts of long chain hydrocarbons. And these long chain hydrocarbons are known as what? Detergents. These detergents come again in varied shapes, in varied quantities, and varied smells under varied brand names. Now you will be shocked to hear this, and if you don't believe me, प्लीज डू चेक इट. यदि आपके यहाँ पर घर पे कोई शैम्पू बॉटल हो, या फिर आपके यहाँ पर शैम्पू के जो सैचेट्स आते हैं, यदि वो हो, देन जस्ट एक बार जाकर के उसके बैक में टर्न करके पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शंस पढ़ना. ऑफ कोर्स पहले इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे हाउ टू यूज, जैसे हमें तो मालूम ही नहीं कि यूज कैसे करते हैं शैम्पू, लाइक दैट. जस्ट ओके. द पॉइंट इज, आप जब नीचे की तरफ में आकर के देखोगे तो वहां पर क्लियरली लिखा हुआ रहता है इट्स अ डिटर्जेंट बेस्ड. इसका मतलब वो जितने भी जो एड्स दिखा रहे हैं, इसके अंदर एवोकाडो है, इसके अंदर बादाम है, इसमें पिस्ता है, इसमें गॉड नोस क्या क्या है, पता नहीं. एन नंबर ऑफ एड्स शो एन नंबर ऑफ थिंग्स. दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग गाइस. एवरी योर शैम्पू इज डिटर्जेंट बेस्ड. तो सर आप क्या बोल रहे हो कि हम हमारे बालों को डिटर्जेंट से धोते हैं? इन अ वे यस. द ओनली थिंग इज डिटर्जेंट का डाइल्यूशन हो चुका होता है, काफ़ी ज़्यादा आपने पानी और अदर चीज़ें मिक्स करी हुई है, जिनकी वजह से आपके हेयर सॉफन हो जाते हैं एंड यू डोंट फील कि वो डिटर्जेंट है. इसीलिए यदि आपने अपने बालों में बहुत ज़्यादा बार यदि आपने डिटर्जेंट लगाया, सो अल्टीमेटली यू विल एंड अप लूजिंग योर हेयर, या फिर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है. नाउ सो रिमेंबर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिटर्जेंट्स एंड सोप्स. Detergents are synthetic compounds which are formed from ammonium sulfate or sulfonate salts of long chain of hydrocarbons. While what do you mean by soaps? Soaps are those substances which contain sodium or potassium salts of what? Carboxylic acid. That's all. Now let's move on to the word of hard water and soft water. Whenever you go back to your homes, okay, देन अलग अलग तरह के पानी नॉर्मली आते हैं. यदि वाटर का सोर्स आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दे रहा है, दैट मीन्स दैट मस्ट बी सॉफ्ट वाटर. ऑन द अदर हैंड, व्हाट डू यू मीन बाय हार्ड वाटर? हार्ड वाटर इज दैट वाटर विच इज बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम द बोरवेल्स, फ्रॉम द हैंड पंप्स, फ्रॉम अंडरग्राउंड सोर्सेज, जो स्प्रिंग्स आते हैं वहां से जो पानी निकलता है डिजोल्व्ड सॉल्ट्स के साथ में, दैट इज नोन एज हार्ड वाटर. नाउ सॉफ्ट वाटर का एक और मतलब होता है, जब भी कभी आप सॉफ्ट वाटर में सोप यूज करोगे तो बहुत सारा फोम, लादर या झाग बन जाएगा. ऑन द अदर हैंड हार्ड वाटर के अंदर पोटेशियम एंड कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं, एंड विच विल नॉट लेट द सोप फॉर्म लादर, या झाग नहीं बनेगा. तो SW मीन्स सॉफ्ट वाटर. सॉफ्ट वाटर मीन्स इट प्रोड्यूसेस फोम. जब भी कभी आप सोप से रगड़ोगे तो बहुत सारा झाग बन जाएगा.
बट यदि काफी बार ब्रश करने के बाद भी झाग नहीं बन रहा है, दैट मीन्स योर वाटर इज व्हाट, हार्ड वाटर। नाउ सॉफ्ट वाटर के अंदर आमतौर पे द कार्बोनेट्स एंड द ऑक्साइड्स वाला पार्ट होता है आपके पास में, एंड दीज कार्बोनेट्स एंड ऑक्साइड्स कैन बी इजीली रिमूव विद द हेल्प ऑफ बॉइलिंग। बट जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर नॉर्मली सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स के ही हेवियर सॉल्ट्स होते हैं या हेवियर कंपाउंड्स होंगे, और इनको उतने आराम से हार्डनेस को रिमूव करना उतना इजी टास्क नहीं होता है। इट रिक्वायर्स काफ़ी केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। बट सर डिसएडवांटेज क्या है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर का? यदि आपने सॉफ्ट वाटर के अंदर फॉर एग्जाम्पल सपोज एक ग्लास रखा और जब आप इसको बाहर निकालोगे तो सॉफ्ट वाटर के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्लास एकदम शाइनी रहता है। बट यदि आपने हार्ड वाटर में काफ़ी टाइम तक ग्लास को छोड़ दिया और आपने बाद में निकाला तो आप देखोगे नीचे बेस में एक वाइट कलर की या येलोइश कलर की एक लेयर जम जाएगी, और रेड से कलर की भी एक लेयर जम सकती है डिपेंडिंग ऑन आप किस रीजन में रहते हो, एंड दैट विल शो दैट ऑल दोज द कार्बोनेट्स और द सॉल्ट्स हैव डिपॉजिटेड बिलो। सो दैट इज द डिफरेंस। इसका मतलब जब भी कभी यदि आप कपड़ों को हार्ड वाटर के अंदर धोते हो तो देन उन पे एक वाइट कलर के ऐसे लाइंस बन जाएंगे, और नॉर्मली ऑन ट्राउजर्स बनते हैं, एंड दोज आर नोन एज व्हाट, स्कम, SCUM। Soap reacts with calcium and magnesium ions in the hard water to form insoluble substance called scum. So ये जो insoluble substance होगा scum, वो कब बनेगा? जब सोप या डिटर्जेंट किस चीज से रिएक्ट करेगा? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, जो रिस्पॉन्सिबल है हार्डनेस ऑफ वाटर करने के लिए। एंड दिस इज फाइनली द एंड ऑफ द टॉपिक। ओके, सो रिमेंबर गाइज दैट this particular topic is now all the way over now, yet your work is not over. What you need to do is consult or go and see the influence book once again and then start reading out the part. और तब भी यदि आपको difficulty है, I think guys only start doing the sheets which I am posting it on the group, and I think that would be more than sufficient for you to complete this chapter. Still any case of doubt, do message me on my number. Okay, thank you guys so much. Enjoy, chill. The next video is coming up. Bye-bye.